السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، دس از می بابر دیوان، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپفلی آپ اچھے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی ویڈیو ہم دیکھنے والے ہیں، جس میں ایک آدمی جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ڈیبیٹ کرتے کرتے اس نیچ تک آ پہنچا کہ اس نے بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ تو ڈاکٹر ذاکر صاحب اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں، کیسے تھریٹ کرتے ہیں، کیسے روکتے ہیں، وہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں۔ ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کافی کچھ اسلامک نالج ملنے والا ہے۔ ویڈیو میں پلیز آپ نے اینڈ تک جڑے رہنا ہے۔ اگر اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سپورٹ بھی کریں۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹ دس ویڈیو۔ Islam divides peoples of the whole world in two. One is Mu'min and there is Kafir. Islam does not recognize killing the cows, killing the Kafirs, taking their property, loot, women folk. Islam tells how brotherhood can come. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے، اور اسی شوق کے چکر میں وہ اپنی بے عزتی بھی کرا لیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایسا ہی کچھ دکھانے والے ہیں، جہاں سوال کرنے والے نے تو اپنا سوال کر دیا، مگر بعد میں آنے والے انکل جی نے اپنا علم جھاڑنا چاہا، مگر پھر جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو جواب دینا شروع کیے تو وہ اپنی سیٹ سے ہل بھی نہ سکا، بس ادھر ادھر ہی دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ کو اس سے متعلق پوری تفصیل سے بتاتے ہیں، مگر پہلے آپ کو پہلے شخص کا سوال اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب سناتے ہیں۔ ناظرین، ایک شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ آپ نے بھائی چارے سے متعلق لیکچر دیا، مگر آپ کافر کے موضوع پر بات نہیں کر رہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس نے پوری دنیا کے معاشرتی نظام میں بگاڑ پیدا کر رکھا ہے۔ My simple question is, you have talked about racial brotherhood, linguistic brotherhood, blood brotherhood and so on, and they are the disturbers of the concept of universal brotherhood. But you have not talked on the concept of kafir, I think, which is one of the most important disturbers of universal brotherhood in the world. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ کافر لفظ پر آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں، یہ لفظ عربی زبان کا ہے اور یہ کفر سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے چھپانا، رد کرنا یا مسترد کرنا۔ اسلام میں اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص کو جو اسلام کے پیغام کو دھتکارتا ہے، اس کو نہیں مانتا۔ جو بھی اسلام کے پیغام کو نہیں مانتا وہ کافر کہلاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بھائی چارے ہیں، جس کی بھی بات کر لیں، چاہے دنیا میں مجموعی طور پر بھائی چارے کی بات کریں، بھارت میں رہنے والے لوگوں کا بھائی چارہ ہو، پاکستان میں رہنے والوں کا ہو، یا پھر امریکہ میں رہنے والے بھائی چارے کی بات کریں، مگر یہ سارے بھائی چارے اسلامی مذہب یا مسلمانوں کے بھائی چارے سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کافروں کا بھائی چارہ بھی حقیقت ہے، یعنی وہ تمام لوگ جو اسلام کے پیغام کو مسترد کر دیں وہ کافر بھائی چارے میں داخل ہو جائیں گے۔ مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیوں مسلمان غیر مسلموں کو کافر کی گالی دیتے ہیں اور کافر کہہ کر ان کی تضحیق کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی، سادہ سی مثال ہے کہ کافر سے مراد وہ شخص ہے یا وہ کمیونٹی ہے جو مسترد کر دے، اور اسلامی نقطہ نظر سے وہ لوگ جو اسلامی پیغام کو نہ مانے کافر کہلائیں گے۔ انگریزی میں کافر کا ترجمہ کریں تو وہ غیر مسلم بنے گا۔ اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اگر آپ کہیں کہ میں غیر مسلم کو کافر نہ کہوں تو پھر کیا کہوں؟ اس کے لیے لفظ ہی یہی ہے۔ Asked me questions, and during question answer time, one of the cassettes they said that why do the Muslims abuse us by calling kafir? And people say that that gets hurt. I said, see, kafir is an Arabic word which means a person who rejects the truth of Islam. It's an Arabic word. For a person who rejects the truth of Islam, in English if I have to translate, he becomes a non-Muslim. So a person is a non-Muslim who rejects the truth of Islam, he is called as a kafir. It's just a translation of the English word non-Muslim. So if you say that don't call a non-Muslim a kafir, how can I do that? So if a person says, why do you call me a kafir? Don't call me a kafir. So I can tell that you accept Islam, I stop calling a kafir. ناظرین، اس جواب سے وہ شخص تو مطمئن ہو گیا جس نے اصل میں یہ سوال رکھا تھا، مگر ایک اور شخص اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر ذاکر، آپ لفظوں کی جادوگری دکھا رہے ہیں، الفاظ سے کھیل کر آپ ہمیں الو کیوں بنا رہے ہیں؟ اسلام حقیقت میں لوگوں کو تقسیم کرتا ہے۔ اسلام میں صرف دو لوگ ہیں، ایک مومن اور ایک کافر۔ ہم اسلام کی کئی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ عالمی بھائی چارے اس صورت میں ممکن ہی نہیں جس کے تقاضے اسلام ہم سے کرتا ہے۔ اسلام صرف تقسیم کرتا ہے اور درار ڈالتا ہے۔ ہم اسلام میں 70 سے زائد فرقوں کی گواہ ہیں۔ یہ صرف ہندوازم ہی ہے جو عالمی بھائی چارہ دے سکتا ہے۔ اسلام جنگوں کی بات کرتا ہے، لوٹ مار کی بات کرتا ہے، گائے کو ذبح کرنے کا کہتا ہے۔ عالمی بھائی چارہ کیسے ممکن ہے؟ اسلامی لبادے میں جس بھائی چارے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اصل میں ہندو مذہب کی تعلیمات ہیں۔ Islam divides peoples of the whole world
in two. One is Mu'min and there is Kafir. Definitely we don't believe and trust in many things which Islam says. So this brotherhood of universal brotherhood is not possible what Islam wants to enjoin upon us. Islam only creates divisive forces. Even we can know Shias, Sunnis and 70 other castes in Islam itself. I'm putting the question. No problem. Universal, but Islam cannot give universal. It's only Hinduism which can give universal brotherhood. Ekam Satya Vipra Bahuda Vadanti, which you have just quoted. Islam does not recognize killing the cows, killing the kafirs, taking their property, loot, women folk. Islam tells how brotherhood can come. And you talk of brotherhood, it's a jugglery of words only. Really speaking, you are talking Hinduism in the name of Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स की सारी बातें बड़े सब्र के साथ सुनी और जैसे ही वो माइक छोड़कर अपनी सीट पर जा बैठा तो डॉक्टर साहब ने कुरान की आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और कहा कि भाईचारे के लिए हमें एक दूसरे की बात सब्र से सुननी चाहिए। अगर मैं इन भाई साहब की बात सब्र से नहीं सुनूंगा तो हमारे दरमियान लड़ाई हो जाएगी। हो सकता है कि भाई का हिंदू मजहब से मुतालिक इल्म काफी ज्यादा हो मगर इस्लाम से मुतालिक इनका इल्म काफी कमजोर है। उस शख्स को मुखातिब करके डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि इस्लाम में दो तरह के लोग हैं, एक ईमान वाले और दूसरे ईमान न रखने वाले जिनको आपने काफिर कहा है। हर मजहब में दो तरह के लोग होते हैं, एक हिंदू और दूसरे गैर हिंदू। ईसाइयत में ईसाई और नॉन ईसाई होते हैं और इस्लाम में भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम होते हैं। तो फिर यहाँ गलत क्या है? मैं हिंदू मजहब को तनकीद नहीं करना चाहता मगर सिर्फ आपके इल्म में इजाफे के लिए बताता जाऊं कि वेदा में लिखा है कि इंसानों को भगवान के 4 हिस्सों से बनाया गया। सर से ब्राह्मण बने, सीने से क्षत्रिय बने, टांगों से वैश्य और पांव से शूद्र बने। ये जात पात का निजाम हिंदू मजहब में है। मैं हिंदू मजहब को बुरा नहीं कहूंगा मगर आपको वेदा का इल्म है तो आपको पता होगा और नहीं इल्म तो किसी से पूछ सकते हैं कि ये सच है कि जात पात का ये निजाम वेदा में लिखा गया है और शूद्र सबसे कमतर जात समझी जाती है, इतनी कमतर कि ब्राह्मण उनको हाथ लगाना भी पाप समझते हैं। मगर दूसरी तरफ कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है और उन्हें बुरा भला न कहो जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूछते हैं कि वो ज्यादती करते हुए जहालत की वजह से अल्लाह की शान में बेअदबी करेंगे। यूं ही हमने हर उम्मत की निगाह में उसके अमल को आरास्ता कर दिया। फिर उन्हें अपने रब की तरफ फिरना है तो वो इन्हें बता देगा जो वो करते थे। आपने सवाल किया कि मुसलमान लोगों को कत्ल करते रहते हैं, वो गाय को ज़िबा करते हैं, बल्कि आपने कहा कि गाय का कत्ल करते हैं। बहुत से हिंदू लोग कहते हैं मुसलमान जालिम होते हैं, वो गाय का कत्ल करते हैं और इसका गोश्त खाते हैं। आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि एक मुसलमान जो गोश्त नहीं खाता वो भी एक अच्छा मुसलमान बन सकता है जितना कि गाय का गोश्त खाने वाला। मुसलमान होने के लिए गाय का गोश्त खाना जरूरी नहीं मगर कुरान में कई जगहों पर लिखा है कि तुम चौपाओं को खा सकते हो। कुरान सूरह माइदा में कहता है कि ईमान वालों अहद को पूरा करो, तुम्हारे लिए चौपाए मवेशी हलाल हैं सिवाय उनके जो तुम्हें आगे सुनाए जाएंगे, मगर शिकार को एहराम की हालत में हलाल न जानो, अल्लाह जो चाहे हुक्म देता है। सूरह नहल में भी अल्लाह ताला ने फरमाया और तुम्हारे वास्ते चौपायों को भी इसी ने बनाया, इनमें तुम्हारे लिए जाड़े का भी सामान है और भी बहुत से फायदे हैं और इनमें से खाते भी हो। Regarding the concept of can we have non-veg, talking about killing cows, etc. And there are many non-Muslims who say, you know, you Muslims, you all are ruthless people, you all kill animals. Just for your information, brother, a Muslim can be a very good Muslim even by being a pure vegetarian. It's not compulsory that he should have non-veg to be a good Muslim. But since the Quran says in several places, you can have the cattle, why we shouldn't have it? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि साइंसी नुक्ता नजर से देखें तो गोश्त में प्रोटीन होती है जो जिस्म के लिए जरूरी है, इससे जिस्म को आयरन मिलता है। नॉन वेज खाने में प्रोटीन इतनी नहीं मिलती जितनी जिस्म को जरूरत होती है। अगर आप हिंदू सहीफों को पढ़ें तो इसमें वाज़ेह लिखा है कि हिंदू गोश्त खाते थे, बाद में हिंदू मजहब दूसरे मजाहिब से मुतासिर हुआ और गोश्त खाने से चूकने लगे। जैसा कि जैन मजहब में है कि वो जानवरों को मारने की ममानियत करते हैं। अगर आप कहें कि इस्लाम में जानवरों पर बड़ा जुल्म किया जाता है तो मैं आपको एक लेक्चर सिर्फ जानवरों के हुकूक पर दे सकता हूँ जो इस्लाम में बताए गए हैं। मुसलमानों को हिदायत की गई कि जानवरों पर ज्यादा बोझ न डालो, उनका ख्याल रखो, उनसे नरमी से पेश आओ, उनको खाना खिलाओ, लेकिन जब जरूरत हो तो उनसे खाने की जरूरत भी पूरी की जा सकती है। अगर आप दूसरे मजाहिब को देखें जिनमें गोश्त खाने से मना करते हैं तो इसके पीछे ये सोच कार फरमा होती है कि जानवर जिंदा होते हैं इसलिए उनको नहीं मारना चाहिए, इनको दर्द महसूस होता है।
इसलिए गोश्त खाना गुनाह है। मैं इनसे भी इत्तेफाक करता हूँ। हिंदू मजहब में आलमी भाईचारे की जो बात की जाती है, इसके मुताबिक हर जिंदा चीज को भाई समझा जाता है, चाहे वो जानवर हो, परिंदा हो या कीड़े मकोड़े। हिंदू फिलोसफी के मुताबिक वो इंसानों के भाई शुमार किए जाते हैं। मैं ये सवाल करता हूँ कि कोई भी शख्स लाखों करोड़ों जिंदगियों को खत्म किए बगैर 5 मिनट भी कैसे जिंदा रह सकता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप मेडिकल साइंस को जानते हैं तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, इसमें लाखों करोड़ों जिंदा जरासीम मौजूद होते हैं। आप हवा के साथ लाखों जरासीम अपने जिस्म में ले जाते हैं और उनको कत्ल करते हैं। The universal brotherhood in Hinduism is that every living creature is your brother. Every living creature, irrespective whether it's an animal or a bird or an insect. I'm asking a simple question, that how can a person even survive for 5 minutes without killing millions of his brothers? Those who know medical science will understand what I'm saying. That whenever you breathe, there are millions of germs you're inhaling and you're killing. That means in this religion, you're killing your brothers to survive. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को समझाया कि इस्लाम में भाईचारे की तारीफ हिंदू मत से मुख्तलिफ है। इस्लाम में कहा गया कि हर इंसान दूसरे का भाई है, हर जिंदा मखलूक इंसान की भाई नहीं। तो जब हिंदू बात करते हैं कि जानवरों का गोश्त खाना मना है क्योंकि वो जिंदा होते हैं और दर्द महसूस करते हैं, तो साइंस उनकी फिलॉसफी को भी गलत साबित करती है। साइंस के मुताबिक पौधे भी जिंदा हैं, वो भी दर्द महसूस करते हैं। पौधे खुश भी हो सकते हैं और रो भी सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इंसान पौधों की आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि वो जिस फ्रीक्वेंसी पर आवाज निकालते हैं उनको सुनना इंसानों के बस की बात नहीं। मिसाल के तौर पर आजकल एक डॉग विसल का बहुत जिक्र होता है इंटरनेट पर। अगर आप इस सीटी को बजाएं तो इंसानों की इसकी आवाज नहीं आती, मगर कुत्ते इसको सुनकर भागे आते हैं। इसी तरह से पौधों का रोना हम नहीं सुन सकते, मगर वो रोते हैं, उनको भी दर्द महसूस होता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि एक शख्स ने मेरी ये बातें सुनकर कहा कि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, पौधे जिंदा हैं, तकलीफ महसूस करते हैं, मगर जानवरों में 5 हिस्से होती हैं जबकि पौधों में 2 हिस्से होती हैं। इसलिए जानवरों को मारना ज्यादा बड़ा गुनाह है क्योंकि वो 5 हिस्से ज्यादा रखते हैं। तो मैंने उसका जवाब सुनकर कहा कि फर्ज करें आपका एक छोटा भाई है, इसमें बोलने और सुनने की हिस्स नहीं है और कोई इसको कत्ल कर देता है, तो क्या आप अदालत में जाकर कहेंगे कि इसके कातिल को कम सजा दें क्योंकि इसकी 3 हिस्से काम करती थी? आप तो कहेंगे कि इसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इसने एक हैंडीकैप बच्चे को मारा है। That brother Zakir, I agree with you that the plants have got life, they can feel pain, but you know the plants have got 2 senses less. They only have 3 senses. The animals have got 5 senses. Therefore, killing an animal is a greater sin as compared to killing a plant. So I told him, brother, suppose you have a younger brother who is born deaf and dumb, 2 senses less. After he grows up, if someone goes and kills him, will you tell the judge, oh my lord, give the murderer less punishment because my brother had 2 senses less? Will you say that? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि कुरान पाक में फरमाया गया कि जो चीजें पैदा की गई हैं उनको खाओ और उनसे फायदा उठाओ। मवेशियों में नस्ल बढ़ाने और बड़ा होने की सलाहियत सबसे ज्यादा और सबसे तेज होती है। अगर आपकी बात मानकर हम मवेशियों को न मारें तो दुनिया में मवेशियों की आबादी बहुत ज्यादा हो जाएगी। मौलाना अब्दुल करीम ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने हकायक बयान किए और बताया कि मुसलमान तो सिर्फ गाय का गोश्त खाने के लिए ज़िबा करते हैं, मगर बाद में इसके चमड़े का कारोबार करने वाले हिंदू हैं जो इससे ज्यादा फायदा उठाते हैं। अगर आप दांतों का मुआयना करें तो आपको मालूम होगा कि मवेशियों के दांत स्पॉट होते हैं जिसके बायस वो सिर्फ चारा और सब्ज चीजें ही खा सकते हैं। अगर आप इनका गोश्त खाने वाले जानवरों के दांत देखें तो इनके दांत नोकीले होते हैं और साइंस के मुताबिक ये दांत सिर्फ गोश्त खाने के लिए ही बने हैं। अगर आप इंसानों के दांत देखें तो ये नोकीले भी हैं और स्पॉट भी। अगर खुदा हमें सिर्फ पौधे खाने की इजाजत ही देता तो हमें ये नोकीले दांत क्यों दिए? मवेशियों के मैदे का सिस्टम ऐसा है जो सिर्फ पौधों को हजम कर सकता है। शिकारी जानवरों का मैदा सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है और इंसानों का मैदा ऐसा है कि वो गोश्त भी हजम करता है और पौधे भी। अगर खुदा ने हमें सिर्फ पौधे खाने की इजाजत देनी थी तो फिर हमारा मैदा ऐसा क्यों बनाया कि वो दोनों चीजें हजम कर सकता है? तो साइंसी तौर पर और मंतकी तौर पर भी आप देखें तो हमें गोश्त और पौधे दोनों खाने के लिए पैदा किया गया है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। हाँ तो आलिज़, आपने ये वीडियो देखी डॉक्टर जाकिर साहब के इतने अथेंटिक किस्म के दलाइल आपने सुने, एग्जाम्पल सुनी, साइंसी लिहाज से प्रूफ करना सुना आपने, और आपके इल्म में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया होगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसी तरह की वीडियो आप मेरे चैनल पर देखते रहना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट भी करें। टेक केयर, बाय बाय।